hospitals currently. We are located majorly in the western part of the country. We have two hospitals in Mumbai, one hospital in Rajkot, and two other hospitals in Nagpur. That's the hospital vertical. Apart from hospitals, we are into a pharmaceutical business as well, and we are having a foundation which we call a Wockhardt Healthcare Foundation. Wockhardt Hospital, South Mumbai, we are currently celebrating our 10th year anniversary. This is 350-bedded hospital, 20-story building with more than 100 ICU beds that we are keeping currently. Today we will be discussing more about the cardiac illnesses in the young age group. The way we have developed the cardiac science department at Wockhardt Hospital, South Bombay, it's in a way that in this particular department we have interventional full-time cardiologist, we have a cardiothoracic surgeon, interventional radiologist, and non-invasive cardiologist. When I say full-time, that means all those doctors who I have just named, they are available 24/7 in the hospital. So whenever in a cardiac emergency, any patient who is coming to the hospital, there is one parameter which we call load to balloon time. This basically tells you that what particular time patient has entered into the emergency door, to what particular time we are taking patients on the cardiac table and performing the PDCA. So that we measure, that we call load to balloon time. And for all the patients who are coming for any sort of a cardiac emergency in the hospital on month-on-month basis, we are tracking that time, and that time is under 90 minutes. So within 1 hour, 30 minutes, patient enters into the ER, we are taking that patient on the table, all the clearance has been done, and we are able to place the stent in the patient's coronary arteries. So that is how we are managing the cardiac department. As I said, we have a dedicated cardiothoracic surgeon also who is available in the hospital. We have a cath lab available with us. This is Philips FT10 and FT20. So we have, as I just mentioned, we are celebrating 10 years. So 10 years back, we have somehow realized that. So thank you everybody for coming. I'm Dr. Pareen Sangoi, interventional cardiologist. So I'm definitely sure that every one of us is interested in this very new thing, in this new genre which is going on, that is heart attack in young patients. So why is this happening? What are the positive factors? What are the different trends that we are seeing? What is the gender discrimination which we are seeing? How can we prevent it? And how to go about forward. So these are certain points over which I will be talking. And so we start with that. So heart attack in young population. So first of all, I would like to tell the word young. Now doesn't mean that the age group of the patient is 40 or 45. I would say the definition for young is less than 25 years of age because of a lot of different factors. Because we are seeing those types of patients on the rise because of different issues. The very, very important point for these patients which is happening in the young patients which is happening less than 35 years of age who are coming with very bad disease and immediate heart attacks in which we have to do a PAMI, that is a primary angioplasty in myocardial infarction, where the load to balloon time is 90 minutes to 120 minutes, and we need to open the blocked artery and put a stent. So why are these types of patients coming in such bad shape? The most and the formative important point is stress. So I would like to really emphasize on this point about stress.
patient is not adhered to his family, probably is not married. So why these types of patients who have this type of complaints of stress, unmarried, loss of love, anger coming with heart attacks? So we have done certain genetic studies in these patients. So there is something which is known as the biological age of the patient. So if the age of the patient is 30 years, if we do a genetic study in these patients, the biological age of these patients will be 60 or 65 years. Mind you, this is a very important point. The biological age of a patient who is 25 or 30 years, looking at him, is 60 or 65 years. So why is the biological age of these patients under stress so high? So what is stress doing? Lack of love doing? Anger. So what is that doing? That is causing genetic disruption. Genetic disruption, there is a chromosome in the body. These chromosomes are adhered to telomeres. So stress is causing genetic disruption. It is causing telomere shortening. And this genetic disruption because of stress, overactivity, sympathetic overdrive, lack of love, lack of family is causing to increase the biological age in the patients. I am very sure this is a concept which most of you have not heard about, and this is something new. So this is what the stress is causing, genetic disruption. So this is the most important factor why the young patients are coming with heart attacks. Second point. बिहार से ग्रैंड ट्रैवल करता हूँ। एक्चुअली मुझे मंडे के दिन सडनली ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी और मैं हॉस्पिटल नहीं आया। सडनली मरीज सर ने जैसा मुझे ट्रीट किया इमरजेंसी में, जो भी मुझे मेडिसिन देना था उससे मैं रिलैक्स हुआ, रिलीफ मिली मुझे। उसके बाद एंजियोग्राफी हुआ, उसमें पता चला मुझे ब्लड क्लॉटिंग का हार्ट में। मरीज सर ने जो भी मुझे ट्रीट किया अच्छा। अभी फिलहाल तो मैं ठीक हूँ, बेटर फील कर रहा हूँ बस। और Hi, good afternoon to everybody. My name is Shahbaz Khan. I stay in the Supreme Court Hospital, which is close by. And early in the morning, around like 4:30 or maybe 5, I started paining on my back. I thought it was an acidity, so I put renting and I went to sleep. Then in the morning, I got up like usually 9 like 9:30 or maybe then I went up. So I feeling I wanted to go and do a vomit. So I've tried to vomit, but nothing was there in my stomach. So it came out anything. फिर उसके बाद में I told my wife कि मुझे एक कुछ दे दो गाड़ी को ताकि मैं खा के कुछ vomit करूँ. So I went for a shower. Then after that मुझे vomit हुई. वो आधे घंटे का जो vomit का जो relief था, बहुत मेरे को सुकून वाला वो relief मिला था. Then I ready for the office. I go towards Rangoon station, catch a train towards office. I have an office at Goregaon. So I was walking and हाथ पे मेरे को अजीब सा एकदम करंट जैसा पेन आया on the left hand side of the very first finger. तो एकदम करंट जैसा उस स्पीड जो अंदर आ गया, मैंने वो इग्नोर किया, मैंने उसको कि कुछ लग क्या रहेगा। तो वो दर्द मेरे को लिटरली यहाँ से ऐसा बढ़ता पूरा मेरा लेफ्ट हैंड ये वो, एंड आई वाज थिंकिंग ये एसिडिटी ही है। तो एसिडिटी की उस वजह से मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन मेरे को ये था कि कुछ बहुत या फिर डकार कुछ आ जाए तो मेरे को रिलीफ मिले। तो रिलीफ कुछ आ रहा ही नहीं था, तो मैं बट कीप वॉकिंग। स्टेशन पहुंचा मैं, फिर उसके बाद मैं लैडर था, मैं वो क्लाइंब कर रहा था, तो मेरे को सांस लेने में इशू, तो मैं ज़बरदस्ती मुंह से सांस खींच रहा था। तो आई थॉट लाइक दिस इज नॉट एन एसिडिटी। आई केम डाउन एंड आई गॉट अप वन ऑफ माय फ्रेंड टेक मी टू वोकार्ड हॉस्पिटल। देन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डॉक्टर परी एंड वेरी गुड ट्रीटमेंट व्हिच इज हैपनिंग। So it's a request to all of you, if you get any such kind of a pain, please do visit to it. आज मी परिसरात त्यासमोर बसलो आहे. ॲक्च्युली मी 29 वर्षाचा आहे आणि मी नॅशनल स्पोर्ट्समन आहे, पॉवर लिफ्टिंगचं. मी नॅशनल प्लेयर आहे, 3 वेळा नॅशनल झालेलो आहे आणि मला कोणतंच व्यसन नाही, मी कोणतं व्यसन करत नाही, काय नाही. आता प्रॉब्लेम असा झाला की माझी सूट
सिकनेस होते माझं खानपान सगळं नव्हतं झोपेचं माझं वेळ नव्हतं 5-6 तास झोपायची मला 4-5 तास 5 तास झाला असा विषय की मी झोपलेलो आणि अचानक माझ्या पाठी दुखायला लागला झोपेमध्येच पाठी दुखायला लागलं तर मला अचानक घाम यायला लागला जसा घाम आला ना तसं मी पहिलं नाही E सी जी केलं BP चेक केलं BP नॉर्मल आला ECG पण नॉर्मल आला ते बोलले गॅस झाला बोललो ठीक आहे त्यांनी मला इंजेक्शन वगैरे दिलं आणि गोळ्या दिल्या मी घरी जाऊन आराम करा मी घरी गेलो आराम केला 1 तास झाला 2 तास झाला मला काय बरं वाटत नव्हतं तर मी जरा उलटी वगैरे केली मला जरा पित्त आलं तसं पित्त आलं ना त्या हिशोबानंतर मग मी बोललो नाही मला अजून पित्तच आहे मी घरच्यांना बोललो की आपण उकाडला जाऊ उकाडला ॲडमिट झालो उकाडला ECG माझं जरा गडबडलं जसं ECG गडबडलं माझं तर मग डॉक्टर परीन सर रात्री 12 वाजता बरोबर रात्री 12 वाजता माझ्या इथे आले परीन सर आणि परीन सरने पुढे वगैरे केलं मध्ये चेक केलं ते सांगितलं की नाही आपल्याला अर्जंटमध्ये आपल्याला एन्जिओग्राफी करावी लागणार एन्जिओग्राफी केली एन्जिओग्राफी केल्यानंतर 95%चा ब्लॉकेज दाखवला 95%चं त्यांनी गेलं की मला आपल्याला एन्जिओप्लास्टी करावी लागेल त्यांनी इमर्जन्सीमध्ये माझी रात्री 2-2.5 वाजता माझी मैं हूँ डॉक्टर परीन संगोई, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। मैं वोकाड हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल में काम करता हूँ। ओवर टू यू फॉर द क्वेश्चंस। सर आज यहाँ पे वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में आपके प्रेजेंट जिनका आपने इलाज किया है उनके बारे में बताया उनके जो अनुभव है उनके बारे में बताया। तो हमने जैसे अभी वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को हुआ है एंड उसके आगे और पीछे हमने कुछ 3 या 4 हफ्ते में काफ़ी यंग पेशेंट्स देखे हैं जो हार्ट अटैक के साथ आए हैं। कुछ की उम्र तो 30 साल के नीचे है, दी अदर्स आर बिटवीन 30 एंड 35 ईयर्स ऑफ एज। तो वेरियस लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स जिसे बोले हैं ये कि जैसे हैं कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो बैठ के काम करे ऑफिस में, या तो जिसका नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा हो, कोई एक्सेसिव स्मोकिंग करता हो, एक्सेस अल्कोहलिक कंज्यूम करता हो, स्ट्रेस हो लाइफ में ज़्यादा, लैक ऑफ लव हो, कोई डायबिटिक हो, बीपी पेशेंट हो, थायराइड प्रॉब्लम हो, कि ये सब रिस्क फैक्टर्स की जांच करनी ज़रूरी है। यंग पेशेंट्स को पता नहीं है कि ये सब प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में हो रहे हैं, तो एक स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है, ना कि वो पेशेंट हमें डायरेक्ट हार्ट अटैक के साथ आए और फिर हमें एंजियोप्लास्टी या तो फिर बाईपास ऑपरेशन के लिए उनको भेजना पड़े। तो टेक होम में से यहीं पे है कि हम ये यंग पेशेंट्स को एक एजुकेशन पॉइंट से हम देखें और इनको बताएं कि आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, ताकि एटलीस्ट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टाइम पे हम उनका सुधार कर सकें। अभी आपके साथ के 3 पेशेंट यहाँ पे मौजूद हैं, उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त आप बताइए कि किस तरह से आपने उनका इलाज किया और ये लाइफ में यहाँ पे मौजूद है। तो जैसे कि एक 29 साल का पेशेंट है मेरे साथ जो कि रात को 12 बजे आए थे हार्ट अटैक लेके, और उनकी लाइफस्टाइल वैसे काफ़ी अच्छी है, वो जिमनास्ट है, पर उनके प्रॉब्लम है कि इरेगुलर स्लीप है, ज़्यादा स्ट्रेस है उनके लाइफ में। तो जैसे कि बाहर उन्होंने ECG करवाया, वो ठीक था, फिर भी उनको सिम्टम्स होते जो हम गैस जिसको बोलते हैं, जो हमेशा गैस नहीं होता, और हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और हाथ में थोड़ा सा दर्द था। तो मैंने देखा कि ECG अबनॉर्मल था, फिर 12 बजे उनको हमने ऑपरेशन थिएटर में लिया, एंजियोग्राफी किया, एक 95% ब्लड क्लॉट के साथ ब्लॉकेज निकला और उसे हमें एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी, और 2-3 दिन के बाद डिस्चार्ज हुए पेशेंट और ठीक है। दूसरे पेशेंट है जिनको सिमिलर कंप्लेंट्स थे, जिनको जो थोड़ा सा लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, जो डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनके दूसरे भी कारण हैं, जो लाइफस्टाइल इम्बैलेंस है, उनको भी यही सिमिलर प्रॉब्लम हुआ और उनका हमने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी किया, जो कि एक इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी हम बोलते हैं एज ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर, और वो भी ठीक से हुआ और मेन आर्टरी में उनको भी स्टेंट लगाना पड़ा एंड ही इज़ ऑल्सो डूइंग फाइन। और तीसरे पेशेंट है जिनका हार्ट का पंपिंग कम था, जिनको डायबिटीज़ था, BP था, जो कि अनकंट्रोल था, वो भी हार्ट अटैक लेके आए, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी भी मेन नस में ब्लड क्लॉट के साथ अराउंड 80 to 90% ब्लॉकेज था, जिसको हमने स्टेंट लगाया और सारों का भी पंपिंग नॉर्मल हो गया है और सारे फिट एंड फाइन है और सब अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं और जो भी रिस्क फैक्टर्स उसको कंट्रोल में रख रहे हैं। एवरीबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ डायबिटीज़, BP, या तो जो भी उनके लाइफस्टाइल में इश्यूज़ हुए हैं वो उसके ढंग से उसको देख रहे हैं, एंड बाय गॉड्स ग्रेस सब अच्छा कर रहे हैं और सब रेगुलर फॉलो पे आ रहे हैं। थैंक यू। हाँ सर बोलिए। मेरा नाम विजय शिंदे है, मेरा उम्र 36 है। एक्चुअली मुझे लास्ट मंडे के दिन सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी तो मैं यही हॉस्पिटल में आया। हॉस्पिटल में आने के बाद परीन सर ने जो भी ट्रीट किया उसमें पता चला कि मुझे हार्ट ब्लॉकेज था, हार्ट ब्लड ब्लॉकेज था। उन्होंने इमरजेंसी में मुझे जो भी मेडिसिन दिए
एंजियोप्लास्टी के लास्ट वेडनेसडे को मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ, वो सक्सेस भी हुआ है। अभी बहुत अच्छे से रिलैक्स हूँ, रिलीफ हूँ, अभी ठीक हूँ। थैंक यू। मेरा नाम शाहबाज खान है और 26 मॉर्निंग को मुझे दर्द हुआ था और मेरा स्टेशन पे मुझे एकदम से पेन आया था और मुझे जब यहाँ पे लेकर आया गया तो मैं होश में नहीं था तभी मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में जैसे मैं होश में आया था मैं बेड पे था और फिर उसके बाद मैं आई वॉज इंट्रोड्यूस डॉक्टर परीन, काफ़ी अच्छे डॉक्टर है, काफ़ी एज अ फैमिली की तरह उन्होंने ट्रीट किया था मुझे। थैंक यू सो मच। मी ओंकार अभी सही है, मी ओंकार वागदरे, माझं वय 29 वर्ष आहे। मला 23-24 तारखेच्या दरम्यान मला एक 4 वाजता ना छातीत दुखायला लागलं, पाठीमध्ये मला घाम आला। मग मी नायरमध्ये गेलो, नायर हॉस्पिटलला गेलो, माझा ECG काढला, BP चेक केला, ते बोले गॅस आहे, तुम्ही नका येऊ। मी घरी जाऊन तिने इंजेक्शन दिलं, तसं इंजेक्शन दिलं आणि गोळ्या दिला, मी घरी आलो। तरी मला 1-1.5 तास अजून पुन्हा दुखत होतं। मी घरच्यांना बोललो की आपण उकाळ हॉस्पिटलला जाऊ, काय नॉर्मल गॅस बी असेल तर आपण चेक करून घेऊया। मग मी उकाळला ॲडमिट झालो 7:30-8 वाजता रात्री। असं ॲडमिट झालो होतं, त्यांनी सांगितलं की नाही जर आपल्या ECGचा प्रॉब्लेम येतो आहे, ECGचा प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही ऑपरेशन करू, आपलं आपण 2D इको चेक करू। डॉक्टर परीन सरांनी मला 2D इको चेक केलं, तिकडे ते बोलले की नाही आपला आता एन्जिओग्राफी करावी लागेल। रात्री 12-12:30 वाजता इमर्जन्सीमध्ये त्यांनी मला एक एन्जिओग्राफी केली। एन्जिओग्राफी केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की 95%चा ब्लॉकेज आहे। 95%चा ब्लॉकेज सांगितल्यानंतर त्या लोकांनी सांगितलं की आपला इमर्जन्सीमध्ये एन्जिओप्लास्टी करावी। त्याने एन्जिओप्लास्टी पण 1-1.5-2 वाजेपर्यंत माझी एन्जिओप्लास्टी रात्री झाली। पहिली गोष्ट की मी व्हेजिटेरियन आहे, मी 4-5 वर्ष झाली मी नॉनव्हेज नाही खात, नाही मला BP आहे, नाही मला डायबिटीज आहे। दुसरी गोष्ट मी स्पोर्ट्स पण होतो। आता 90% खेळ डोक्यातच आहे, तुम्हाला टेन्शनच येणार सगळा विषय, तुमची झोप पूर्ण नाही आणि तुमचं खाणपण, तुम्ही ते सांभाळा। नाही मी सिगरेट नाही, मी दारू नाही पित, मी सुपारी पण खात नाही। 90-99% तुमच्या डोक्यातून विषय येणार, टेन्शन घेऊ नका।